So we have to start with a new chapter, retirement and death of a partner. लिख लेना, retirement and death of a partner. Retirement or death of a partner. Again, we have to carry out the 4 adjustments. First, adjustment. We have to distribute accumulated profits and losses among old partners in old ratio. So, distribution of accumulated profits and losses. Accumulated profits and losses among new partners in new ratio. In new ratio. Sorry, among old partners in old ratio. New क्यों बोल रहा हूँ? गलत बोला मैंने. Among old partners in old ratio. Second, suppose A, B, and C are the partners. B retires from the firm. So later on, A and C will carry on in partnership business. So the profits and losses at the time of retirement of B, which were not distributed, will be distributed now between A, B, and C. A, B, C are the old partners, and A and C will be the new partner. A, B, C are the old partners. A and C will be the continuing partners. वो business continue करेंगे. Then next, second adjustment, revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. And whatever profits or loss on revaluation will be transferred to old partners in old ratio. Then third, goodwill adjustment. And the fourth, कैपिटल एडजस्टमेंट. जो हमने एडमिशन में देखे ना, वही एडजस्टमेंट्स यहाँ पे भी करना. कैपिटल एडजस्टमेंट्स. नेक्स्ट, आगे. ठीक है, आगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड when a partner retires or when there is a death of a partner, we have to settle his account. Suppose A, B, C are the partners. B retires from the partnership firm और B की डेथ होती है, then we have to settle the accounts of B because B has invested in the partnership firm. He has his capital. There may be current account balance. हमें उसको रिटर्न करना होगा along with the share in the accumulated profits and losses, revaluation profits and losses, goodwill adjustment and cap, right? ये सब चीजें हमें करके हमें उसको उसका कैपिटल रिटर्न करना होगा. So try to understand. A outgoing partner is entitled to
A. One, he is entitled to capital, right? कैपिटल अकाउंट बैलेंस, हमें उसको कैपिटल में उसका जो बैलेंस है वो रिटर्न करना होगा. सेकंड, करंट अकाउंट बैलेंस इफ एनी. थर्ड, राइट, शेयर इन accumulated profits. Four, share in good, right, share in revaluation profit. Fifth, share in goodwill. Six, share in profits from last balance sheet date till date of retirement or death. मैं लिख समझाऊंगा ये सब चीजें, लिख लेना खाली. An outgoing partner is entitled to, outgoing partner is entitled to all these things. He is entitled to कैपिटल अकाउंट बैलेंस, उसका जितना कैपिटल हम उसको रिटर्न करेंगे. अगर उसके करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, हम उसको रिटर्न करेंगे. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उसका जो शेयर रहेगा हम उसको दे देंगे. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में जो उसका शेयर रहेगा हम उसको दे देंगे. गुडविल में उसका जो शेयर रहेगा हम उसको देंगे. आउटगोइंग पार्टनर इज ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बिकॉज henceforth he will not be sharing the profits because he is no longer the partner, he ceases to be partner. तो आउटगोइंग पार्टनर जैसे इनकमिंग पार्टनर इज ऑलवेज गेनिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर इज ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो हमें उसमें उसका गुडविल आगे से एएनसी यूज करेंगे. बी चला जाएगा, एएनसी विल यूज दिस गुडविल. सो ऑब्वियसली एएनसी शुड कंपेंसेट or the gaining partner should compensate the sacrificing partner, right? And sharing the profits from the last balance sheet date till the date of retirement or death. ये लिख लेना and then I will discuss all these things. लिख लेना, पहले लिख लेना everyone. Make it fast. लिख लेना and then we will discuss. Make it fast. होने के बाद यस लिख दो so that I can move ahead. Yeah, great.
ओके, देखो होता क्या है, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो हमें उसको क्या देना होगा, उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो उसको रिटर्न करना होगा। अगर करंट अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हो, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, तो उसका करंट अकाउंट में भी कुछ बैलेंस हो सकता है, हमें उसको रिटर्न करना होगा। रिवैल्यूएशन में जो उसका प्रॉफिट आएगा वो भी हमें उसको देना होगा। जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो हम उसमें से उसका शेयर हम उसको दे देंगे, मतलब हम उसके पूरे अकाउंट क्लियर करेंगे। गुडविल में भी उसको हम उसका दे देंगे। ठीक है, आगे लिख लेना। फर्म recovers the following amounts from him from outgoing part। ये चीजें हम उसको देंगे, 1 2 3 4 5 6, ऑल दीज थिंग्स वी विल गिव हिम। ये चीजें हम उससे रिकवर करेंगे। सेम विचार फर्स्ट, डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट। अगर उसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब वो निगेटिव बैलेंस है, वी विल रिकवर इट फ्रॉम यू। दिस इज करंट अकाउंट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस हमें उसको रिटर्न करना होगा, डेबिट बैलेंस हम उससे रिकवर करेंगे। वो डेबिट है मतलब उतना ही आर सपोज टू पे टू फर्म। 8, शेयर इन accumulated losses, share in accumulated losses। if there are accumulated losses, अगर असेट साइड पे पी एंड एल है, असेट साइड पे पी एंड एल है मतलब वो लॉस है, वो हम उससे रिकवर करेंगे, उसमें से उसका शेयर हम उससे रिकवर करेंगे। 9, इफ देयर इज अ रिवैल्यूएशन लॉस, हम उससे वो रिकवर करेंगे, शेयर इन रिवैल्यूएशन लॉस। प्रॉफिट्स में उसको देंगे, लॉसेस उससे रिकवर करेंगे। 10, share in the losses from last balance sheet date till the date of retirement or death। ठीक है, ये चीजें हम उसे प्रॉफिट्स में उसको देंगे, लॉसेस उससे रिकवर करेंगे, सिंपल वर्ड्स में। आगे, अमाउंट पेएबल टू हिम मे बी पेड इन लमसम और ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू हिज राइट और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। एंड थर्ड, partial amount is paid
and balance transfer to loan or representative's account. Balance transfer to loan or his loan or his legal representative account. लिख लेना ये. हमें उसको जो पे करना है ना, हम या तो पूरा पे करेंगे या उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे या थोड़ा पे करेंगे बाकी लोन में ट्रांसफर. जस्ट ए सेकंड, लिखो जल्दी. ओके, चलो देखो, ये चीज फिक्स है. जो मैंने एडजस्टमेंट्स लिखे हैं ना, एडजस्टमेंट 1 एवरीबॉडी नोज, एडजस्टमेंट 2 इज सेम. गुडविल में मैं लिखता हूं, गुडविल एडजस्टमेंट में क्या रहता है. गुडविल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट एंड डेथ. एक हो सकता है रेज द गुडविल, दूसरा हो सकता है राइट, ओके, दूसरा हो सकता है रेज एंड राइट ऑफ द गुडविल. रेज एंड राइट ऑफ गुडविल, ठीक है. या अगर आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे करो, दो में डिवाइड करो. गुडविल इज appearing इन द बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट में है तो, एंड दूसरा गुडविल इज नॉट appearing इन द बैलेंस शीट. गुडविल इज नॉट appearing इन द बैलेंस शीट. गुडविल appearing इन द बैलेंस शीट या तो हमें रेज करने को बोलेंगे या तो राइट ऑफ करने को बोलेंगे, दोनों में से एक. रेज मतलब ऑलरेडी बैलेंस शीट में है और उसको और इंक्रीज करना है, रेज गुडविल. दूसरा हो सकता है राइट ऑफ गुडविल.
एक बोलेंगे गुडविल बैलेंस शीट में सपोज 60,000, बोलेंगे उसको 1 लाख करो, 60,000 को 1 लाख करो, तो 40,000 से गुडविल रेज करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। या 60,000 का गुडविल है, बोलेंगे उसको 30,000 करो, तो हम 30,000 से रिड्यूस करेंगे। 60,000 का गुडविल बोलेंगे 40,000 करो, तो 20,000 राइट ऑफ करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसकी एंट्री आती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड इन ओल्ड। ओल्ड पार्टनर्स में जो पार्टनर रिटायर है, जिसकी डेथ हुई ना, वो भी आएगा। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, आउटगोइंग पार्टनर भी रहेगा बिकॉज इज ओल्ड पार्टनर। इफ दे आस्क यू टू राइट ऑफ द गुडविल, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट राइट, टू गुडविल अकाउंट राइट। देन if goodwill is not appearing the balance sheet, they may ask you to raise the goodwill। बोलेंगे रेज द गुडविल, गुडविल बैलेंस शीट में 0 है, बोलते 1 लाख करो उसको, तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। दूसरा बोलेंगे रेज एंड देन राइट ऑफ, रेज करके राइट ऑफ करो, एडमिशन जैसे कुछ अलग नहीं है, रेज एंड राइट ऑफ। फर्स्ट रेज, फर्स्ट एक्शन है रेज, एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सेकंड एक्शन सेम क्वेश्चन में राइट ऑफ। जब हम गुडविल रेज करते हैं उसी क्वेश्चन में राइट ऑफ करते हो, सेकंड एक्शन इज ऑलवेज अमंग न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, तो एंट्री आएगी न्यू पार्टनर्स, न्यू इन न्यू, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू गुडविल अकाउंट राइट। एंड द लास्ट इज only outgoing partners goodwill is raised, only outgoing partners goodwill is raised, खाली उसका शेयर रेज किया जाएगा, तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख लेना, ओके पहले ये लिखो, मैं वीडियो 2 मिनट के लिए ऐड करता हूं तो आप ठीक से लिख सकते हो, पहले लिख लेना, या 1 मिनट। इफ गुडविल इज रेज्ड, goodwill will appear at raised amount in balance sheet। जब भी आप गुडविल रेज करते हो तो गुडविल बैलेंस शीट में दिखता है, जब गुडविल रेज करके राइट ऑफ करते हो नो गुडविल इन द बैलेंस शीट। अब लिख लेना।
जल्दी करो। जब भी बोलते हैं गुडविल रेज करो, तो गुडविल रेज होता है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बोलते खाली गुडविल राइट ऑफ करो, तो भी हम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। बट जब बोलते रेज करो और साइमल्टेनियसली राइट ऑफ करो, तो रेज करेंगे ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ करते टाइम न्यू इन न्यू होगा। सेकंड एक्शन ऑन गुडविल इज ऑलवेज अमंग द न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ठीक है। एंड समटाइम्स दे मे आस्क कि जो पार्टनर बाहर जा रहा है ना, खाली उसका गुडविल क्या करो, रेज करके रख दो, दैट्स इट। देखो, इन केस ऑफ एडमिशन हम देखते थे कि इनकमिंग पार्टनर यूज्ड टू ब्रिंग हिज शेयर इन द गुडविल इन कैश। इसमें कोई इनकमिंग पार्टनर नहीं है, जो भी जा रहा है उसका ऑलरेडी गुडविल है, हमें उसको उसका गुडविल का शेयर देना है। बिकॉज आगे से वो गुडविल ए एंड सी एंजॉय करेंगे। ए बी सी वर द पार्टनर्स, इन तीनों का गुडविल था, आगे से बी चला जाएगा एंड ए एंड सी विल कंटिन्यू द बिजनेस। सो द गुडविल विल बी एंजॉयड, विल बी गेन्ड बाय ए एंड सी इन फ्यूचर। B will sacrifice his share of goodwill. इसलिए A and C, if they are gaining partners, they will compensate B. तो B को हम उसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे और बोलेंगे तू चाह हम बिजनेस करेंगे। सो जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में होगी दे विल गिव यू इन क्वेश्चन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जो भी लिखा होगा स्पेसिफिकली लिखेंगे, सो डोंट वरी। आगे नेक्स्ट, लेट्स सी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, गुडविल, when the goodwill of the entire firm is raised and written in the business, goodwill raise करने को बोला है, goodwill account debit to old partners in old ratio। when goodwill of the entire firm is raised and then write off, पहले goodwill raise किया old profit sharing ratio में, and फिर goodwill write off किया right new profit sharing ratio में। ठीक है, continuing partners capital to goodwill account। then when goodwill is raised to the extent of retiring partners share and retain the business, ये लास्ट वाला जो मैंने लिखा था, गुडविल इज रेज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड देन राइट ऑफ, ओके, ये केस हमने नहीं लिखी, ये लिखना होगा हमें। नेक्स्ट, in case goodwill already appears in the balance sheet in right, the difference in the goodwill account can be shown either in profit and loss adjustment account, revaluation account, right, in old PSR, right, revaluation account in old PSR, in partners capital and current account। okay, let me show। यहाँ पे चाहे तो एक और पॉइंट लिख लेना।
only outgoing partners share in the goodwill is raised and then write off. फर्स्ट पहले हमें उसका शेयर रेज करना होगा, रेज his share in goodwill, and second write off that in gaining ratio. ये मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. ये लास्ट पॉइंट लिख लेना इसमें, ये मैं समझाता हूं अलग से. लिखो, जल्दी लिखो. ओके, ध्यान देना. एग्जाम्पल, ठीक है. This is balance sheet. This is a goodwill of rupees 60,000. A, B, and C. These are the partners. बाकी बैलेंस शीट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट. पूरी नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना. They are the partners 3:2:1. ठीक है. A. Goodwill is to be raised up to rupees 1 lakh, up to 90,000. ध्यान देना,
You will get all the answers. ध्यान देना खाली. Second, goodwill is to be write off up to rupees let me 3:2:6 होना चाहिए ना. 48,000. See, goodwill to be raised to rupees 90,000 and then write off. They have given you goodwill. They have given you goodwill. ठीक है. Goodwill already in the balance sheet is 60,000. और हमें उन्होंने बोला है अगर केस ए सॉल्यूशन, उन्हें बोला गुडविल 90,000 करो, तो हम एंट्री डालेंगे एक गुडविल अकाउंट डेबिट. कितने से इंक्रीज करेंगे? 30,000. गुडविल अकाउंट डेबिट अभी कितना है? 60,000 है. हमें उसको कितना करना है? 90. तो हमें उसमें कितनी इंक्रीज करना होगा? 30,000. गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000. ये जो 30,000 का गेन है, गुडविल इंक्रीजेस गेन टू ए टू बी टू सी. ये किस रेशियो में? 3:2:1 ओल्ड रेशियो में. सो 30,000 divided by 6, 5,000. 5,000 multiplied by 3, 15, 10 and 5. हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में गुडविल में 30,000 ऐड करेंगे. 60 प्लस 30 90,000 होगा. एंड कैपिटल में हम ऐड करेंगे. ए के कैपिटल में 15,000 ऐड करेंगे, बी के कैपिटल में 10,000 ऐड करेंगे और सी के कैपिटल में हम 5,000 ऐड करेंगे. ठीक है, इसे हम तीन चीजें ऐड करेंगे. सो गुडविल रेज करना. सेकंड, each case is different. गुडविल बैलेंस में 60,000 है एंड केस बी में बोला है उसको 48,000 करना है. सो 60,000 से 48,000 करना है, तो 12,000 से कम करना है. गुडविल कितने से रिड्यूस करना है? 12,000. तो हमें राइट ऑफ करने को बोला है. एवरी केस इज डिफरेंट. सो बैलेंस शीट में अब ये मत बोलना कि सर बैलेंस शीट में 90,000 है. नो, मैं आपको अलग अलग केस समझा रहा हूं. गुडविल 60,000 पे अभी बैलेंस शीट में और उन्होंने हमें 48,000 करने को बोला है, तो हम गुडविल 12,000 से कम करेंगे. तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट. लॉस है 12,000 का, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. टू गुडविल 60,000 का गुडविल को 48,000 करना है, तो 12,000 से कम करना है. सो गुडविल को 12,000 से कम किया. And then we will write it off in the 3:2:1. 12,000 divided by 6, 2,000. 2,000 multiplied by 3, 6,000. 4,000 and 2,000. So हम क्या करेंगे? हम असेट से गुडविल से 12,000 माइनस करेंगे, असेट से माइनस करेंगे और कैपिटल से भी माइनस करेंगे. एबीसी के कैपिटल से माइनस करेंगे. 6,000, 4,000, 2,000 रिस्पेक्टिवली. उनके कैपिटल को डेबिट करना मतलब माइनस होना. सो केस 1 का आंसर, केस 2 का आंसर. खाली गुडविल रेज करना है, खाली गुडविल राइट ऑफ करना है. अब केस सी में क्या बोला है? उन्होंने बोला है वो 60,000 का गुडविल है, उसको 90,000 करो एंड फिर राइट ऑफ करो. अब उन्होंने वैल्यू नहीं लिखी. राइट ऑफ टू कितना? अगर कुछ नहीं लिखते तो राइट ऑफ कंप्लीटली करना होगा लॉजिकली. सो हम पहले 60,000 को 30,000 से इंक्रीज करके 90,000 करेंगे और फिर उसको 90,000 को जीरो कर देंगे. दो एंट्रीज आएगी, दो एक्शन है. तो फर्स्ट एक्शन 60 को 90 करना, रेज करने की एक्शन ओल्ड इन ओल्ड. एंड देन 90,000 को जीरो करने की जो सेकंड एक्शन है न्यू इन न्यू. बी इज आउटगोइंग पार्टनर. बी इज आउटगोइंग पार्टनर. बी इज आउटगोइंग पार्टनर. ठीक है. सी
हमें केस सी करनी है। केस सी में आएगा, ध्यान देना, केस सी में आएगा पहले 60,000 के गुडविल को 90,000 करेंगे। ठीक है, लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 से रेज करेंगे टू एबीसी। 15,000, 10,000, 5,000। सो पहले उन्होंने हमें क्या बोला, रेज करो। हमने गुडविल रेज किया 15,000 से गुडविल, हमने सॉरी 60,000 का गुडविल 90,000 किया, तो हमने असेट में 30,000 ऐड किया, कैपिटल में भी 30,000 ऐड किया। दिस इज फर्स्ट एक्शन। एंड फिर उन्होंने बोला उसको राइट ऑफ करो। अब गुडविल बैलेंस शीट में कितना होगा, इस एंट्री के बाद बैलेंस शीट में ऑलरेडी 60 है, इस एंट्री में हमने 30,000 ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में टोटल गुडविल 90,000 होगा। टोटल गुडविल कितना होगा, 90। बस उस 90,000 को राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करते टाइम न्यू पार्टनर्स, एबीसी में से बी चला गया, तो हु आर द न्यू पार्टनर्स, ए एंड सी। ध्यान देना, पहले कौन थे, ए बी सी, उनका क्या रेशियो था, 3:2:1। अब कौन चला जाएगा, बी चले जाने के बाद कौन बचेगा, ए एन सी, और उनका रेशियो क्या रहेगा, 3:1। बी चला जाएगा, अब रेशियो रहेगा ए एन सी के बीच में 3:1। सो अब आएगा गुडविल राइट ऑफ करना है, ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रेज करते टाइम हमने 3:2:1 रेशियो यूज किया, फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन, न्यू रेशियो में 3:1। 90,000 इन 3:1 अगर डिवाइड करते हो, 90,000 डिवाइडेड बाय 4, 90,000 डिवाइडेड बाय 4, 22,500 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 67,500 एंड 22,500 लिख लेना आप। मेक इट फास्ट। एक है गुडविल को रेज करना, एक है गुडविल को राइट ऑफ करना, दूसरा रेज करके राइट ऑफ करना। 30,000 से रेज करना था, वो ओल्ड रेशियो में किया, और फिर वो 90,000 को राइट ऑफ करना है, उसको न्यू रेशियो में किया। रेज किया ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ किया न्यू रेशियो में। मेक इट फास्ट। अगर बैलेंस शीट में तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, रेज करो, राइट ऑफ करो, रेज करके राइट ऑफ करो। ठीक है, वही मैंने लिखा है, इफ गुडविल इज इन द बैलेंस शीट, रेज, राइट ऑफ। एंड तीसरा ऑप्शन होता है रेज करके राइट ऑफ। अब नेक्स्ट लिख लेना एग्जाम्पल। ABC are the partners, ratio is 3:2:1। ठीक है, B retires। ठीक है, B retires।
A and C continue the business. A and C will continue the business. आगे goodwill is valued at ₹90,000. हमने गुडविल वैल्यू किया है, बी जा रहा है, बी रिटायर हो रहा है, इसलिए हमने गुडविल वैल्यू किया और 90,000 आया है. मे बी एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज 90,000. जो कुछ भी रहेगा 90,000. ए रेज द गुडविल. क्वेश्चन में लिखा है गुडविल रेज करो. ओ एक सेकंड, आई नीड टू अगेन शेयर द स्क्रीन. Let me share my screen. Just a second, हो रहा है वो. Okay. ABC are the partners. 3:2:1 is the ratio. B retire हो रहा है. A and C continue the business. And क्या decide हुआ है? Goodwill is valued at 90,000. Raise the goodwill. B raise and then write off. Raise the entire goodwill and then write off. And then write off. पूरा गुडविल रेज करो और फिर राइट ऑफ करो. सी रेज ओनली बी शेयर इन गुडविल एंड डी रेज ओनली बी शेयर and then write off in goodwill and then write off. एक है पूरा गुडविल रेज करो, दूसरा है पूरा गुडविल रेज करके पूरा का पूरा राइट ऑफ करो, तीसरा है ओनली जो बाहर जा रहा है ना बी, उसका गुडविल रेज करो, एंड फोर्थ जो बाहर जा रहा है उसका गुडविल रेज करके उसका गुडविल राइट ऑफ भी करो. ऐसे 4 ऑप्शंस हो सकते हैं. जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया होगा, सो डोंट वरी एट ऑल. डरने की कोई बात नहीं, एकदम सिंपल रहता है. मे बी इनिशियली लग सकता है ये डिफिकल्ट है, बट नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सॉल्यूशन. केस ए में उन्होंने बोला है गुडविल रेज करने को, राइट? तो गुडविल रेज किया जाएगा. गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 पे. गुडविल रेज करना मतलब गुडविल को डेबिट करना, असेट में लिखना. टू ए टू बी टू सी. 90,000 बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, अगर होता तो लिखते हैं. बैलेंस शीट में कुछ नहीं है और बोला है गुडविल रेज करो. अब गुडविल रेज ही करना है तो हम 0 से उसको 90,000 कर देंगे. सो इसलिए गुडविल को डेबिट 90,000 किया. ये जो भी गुडविल रेज होता है तो प्रॉफिट होता है, गुडविल राइट ऑफ होता है तो लॉस होता है. अब ये जो प्रॉफिट है 0 से 90,000 करना, दिस इज टू बी शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2:1. 90,000 divided by 6, 15.
15 multiplied by 3 45, 15 multiplied by 2 30 and 15. 2A, 2B, 2C. Goodwill account debit 2A, 2B, 2C. गुडविल बैलेंस शीट में 90,000 पे दिखेगा, असेट में गुडविल 90,000 ऐड हो गया, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में 90,000 ऐड हो गया, तीनों के कैपिटल में ओवरऑल। दूसरा बोला है रेज एंड देन राइट ऑफ, तो पहले गुडविल रेज करेंगे, रेज की तो एंट्री यही रहेगी। गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू ए टू बी टू सी एंड फिर राइट ऑफ किया जाएगा। गुडविल को गुडविल बैलेंस शीट में 90,000 दिखेगा, उसको राइट ऑफ करना है और राइट ऑफ किया जाएगा न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। हु आर द न्यू पार्टनर्स? ए एंड सी। हु आर द न्यू पार्टनर्स? ए एंड सी टू गुडविल। टू गुडविल 90,000 राइट ऑफ किया जाएगा ए एंड सी के बीच में इन देयर न्यू रेशियो विच इज 3:1। बी चला जाने के बाद क्या रेशियो रहेगा? बी चला जाने के बाद क्या रेशियो रहेगा? अब भी रेशियो है 3:2:1। अब भी क्या रेशियो है? 3:2:1। इसके बाद क्या रेशियो रहेगा? राइट, इसके बाद रेशियो रहेगा 3:1। आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम है कनेक्शन में, हो जाएगा। देखो क्या होगा, देखो अब भी क्या रेशियो है? 3:2:1। बी चला जाने के बाद क्या रेशियो बचेगा? 3:1। ठीक है, सो 3:1 में राइट ऑफ करेंगे। 90,000 डिवाइडेड बाय 4, 20,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 67,500, 22,500। मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, जब हमने गुडविल रेज किया तो असेट में 90,000 ऐड किया और कैपिटल में भी 90,000 ऐड किया। इसका मतलब हमने ए के जेब में 45,000 डाला, बी के जेब में 30,000 डाला एंड सी के जेब में 15,000 डाला। ए बी सी के जेब में हमने उनको क्रेडिट किया, मतलब उनके कैपिटल में ऐड किया, मतलब उनके जेब में पैसे डाले गुडविल के लिए, और फिर गुडविल राइट ऑफ किया। सेकंड एक्शन है तो न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, गुडविल को असेट से माइनस किया, इसलिए बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रहता। और फिर हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स को। ए को डेबिट किया 67,500, सी को डेबिट किया 22,500। मतलब ए के जेब में पहले 45,000 डाले और बाद में 67,500 निकाल दिए। सी के जेब में पहले 15,000 डाले और बाद में 22,500 निकाल लिया। इफ यू कंबाइन दिस टू एंट्रीज, ध्यान देना, अगर आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करते हो तो क्या दिखेगा, मैं यहां पे लिखता हूं कंबाइन एंट्री। आपको कंबाइन एंट्री नहीं लिखनी है बट मैं समझा रहा हूं। कंबाइन एंट्री, गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, 90,000 90,000। ए को डेबिट है 67,500, ए को क्रेडिट है 45,000, मतलब नेट डेबिट है ए डेबिट 22,500, ए डेबिट 22,500 बराबर। सी को डेबिट है 22,500, क्रेडिट है 15,000, सी डेबिट 7,500, सी डेबिट 7,500 टू बी, बी को खाली क्रेडिट है 30,000 and this ratio is 3:1. This ratio is 3:1. If you combine raise the goodwill and then write off the goodwill, क्या बोला, ध्यान देना, if you combine raise the goodwill and then write off the goodwill, you will get an entry like this. मतलब हमने सी के जेब में 30,000 डाला, सॉरी बी के जेब में 30,000 डाला, ए से लिए 20,500, सी से लिए 7,500। एक्चुअली ये गेनिंग लूजिंग रेशियो की एंट्री है, मतलब आगे से बी विल सैक्रिफाइस, बी सैक्रिफाइस करेगा, इसलिए हम बी को बोलेंगे तू तेरा 30,000 ले, गुडविल 90,000 का है, गुडविल 90,000 का है और तेरा शेयर है 2/6, तेरा शेयर है 2/6, दैट इज 1/3, मतलब 30,000। बी को बोलेंगे हम तीनों का गुडविल कितना है 90, ए बी सी का गुडविल 90 है, आगे से तू नहीं रहेगा, तू नहीं रहेगा, मतलब तेरा शेयर कितना रहेगा 30,000। ये 30,000 अब आगे से किसको मिलेगा, एएनसी को मिलेगा। बी चले जाने के बाद गुडविल किसका रहेगा, एएनसी का रहेगा।
So B will sacrifice his goodwill. And who has gained? A has gained and C has gained in their gaining ratio, which is old ratio, 3:1. So ये जो C का शेयर है 30,000, B का शेयर जो 30,000 है, हम A से लेके B को देंगे, C से लेके B को देंगे. इसमें और डिस्कस करने वाले हम लोग. जब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो मैं और डिस्कस करूंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट, रेज द गुडविल देखा, रेज एंड देन राइट ऑफ द एंटायर गुडविल. तीसरा है रेज ओनली बी शेयर. ठीक है, खाली बी का शेयर रेज करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल. अगर पूरा गुडविल रेज करोगे, इफ यू रेज एंटायर गुडविल तो तीनों में बटेगा, सब में बटेगा. बट जो पार्टनर, जिस पार्टनर का गुडविल रेज कर रहे हो, खाली अगर उसका शेयर रेज करो तो खाली उसको मिलेगा. टू बीज 30,000 30,000. वाई 30,000? 90,000 में उसका शेयर 2/6 है. 90,000 टोटल गुडविल, उसमें से बी का शेयर 2/6 है. बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा 30,000 एंड बी के कैपिटल में 30,000 देंगे और बी को बोलेंगे तू चला जा, तू तेरा 30,000 गुडविल लेके चला जा. डी. एंड द लास्ट बोला है उसका ही शेयर रेज करो फिर राइट ऑफ करो. तो उसका शेयर रेज करना है, इसकी एंट्री ये है. खाली उसका शेयर रेज करना है, उसकी एंट्री, एंड फिर इसको राइट ऑफ करना है. ए एंड सी के बीच में राइट ऑफ होगा, गेनिंग पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होगा टू गुडविल 30. ए एंड सी के बीच में राइट ऑफ होगा इन द गेनिंग रेशियो 3:1. दैट इज 22,500 एंड 7,500. ये वाली एंट्री. आई मीन अगर किसको नहीं समझ में आता है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस टू आर सेम. कौन से? रेज एंड राइट ऑफ जो गुडविल है ना, ये वाला, इस ये और ये सेम ही है. ये दोनों सेम ही है. रेज एंड राइट ऑफ गुडविल इज नथिंग बट रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल एंड देन राइट ऑफ. इन दोनों का, इन दोनों, ये दो एंट्रीज है ना, ये दो एंट्रीज का नेट एंट्री ये एंट्री है. ये दो एंट्रीज की नेट एंट्री है. गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन आएगा तब मैं और डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी. लिख लेना ये कहां तक, आई डोंट नो, मेक इट फास्ट. तो हम डिस्कस करेंगे फिर.
चलो जल्दी करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। हमारे पास चार ऑप्शंस है। एक हम बोलेंगे या तो गुडविल रेज करो या राइट ऑफ करो। रेज हमें पूरा करने को बोलेंगे, राइट ऑफ पूरा करने को बोलेंगे, दोनों में से क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। गुडविल लेना, गुडविल गुडविल या तो हमें रेज करने को बोलेंगे और रेज करके राइट ऑफ करने को बोलेंगे। ये हमने एडमिशन में भी किया। गुडविल रेज किया, ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ किया, न्यू इन न्यू। वही रिटायरमेंट में भी। या दूसरा रेज, दिस इज एंटायर, ये पूरा पूरा गुडविल रेज करो, पूरा राइट ऑफ करो, दिस कैन बी वन ऑप्शन। और रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल। जैसे एडमिशन में जब नया पार्टनर आ रहा था, वो कैश में खाली उसका गुडविल आ रहा था, राइट, उसका ही गुडविल आ रहा था। वैसे ही जब रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट में कोई कैश नहीं लाता गुडविल के लिए, वो जा रहा है, उससे कहां से कैश लोगे। तो हमें क्या करना है, उसका जो गुडविल है ना वही रेज करेंगे। रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल और रेज हिज शेयर एंड देन राइट ऑफ, देन राइट ऑफ। ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो और डिटेल में डिस्कशन होगा, मैं खाली समझा रहा हूं ऑप्शंस होते हैं। एक हमेशा याद रखना, गुडविल रेज करना मतलब गुडविल को डेबिट होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। गुडविल राइट ऑफ होगा मतलब गुडविल को क्रेडिट होगा, पार्टनर्स को डेबिट होगा। किस पार्टनर को कहां पे लेना ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। जब भी फर्स्ट एक्शन होती है तो हम ओल्ड पार्टनर्स को लेते हैं, एंड जो भी सेकंड एक्शन होती है उसमें न्यू पार्टनर्स को लेते हैं। ये एक समझ लेना, ठीक है। रिजर्व्स वगैरह वो सिंपल है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, ध्यान देना। दिस इज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 172। सिंपल क्वेश्चन हम वो करेंगे, ध्यान देना। गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी एंड प्रधान who were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर है, राजा रानी एंड प्रधान। आगे क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो 15,000 का रिजर्व फंड है 5:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन राजा रानी एंड प्रधान। कैश है, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड फर्नीचर, असेट्स है। बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 19। तो यहाँ पे डेट चेंज हो करो, ऑन 1 अप्रैल 2019। 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट है। नेक्स्ट डे पे 1 अप्रैल 19 को प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब खाली राजा एंड रानी रहेंगे, प्रधान चला गया। प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। क्या बोला है? गुडविल रेज करने को बोला है। गुडविल ऑफ द फर्म, एंटायर गुडविल रेज करना है। जो प्रधान जा रहा है उसका गुडविल नहीं बोल रहा है, सबका, राजा रानी प्रधान तीनों का गुडविल रेज करना है। सो जब हम गुडविल रेज करेंगे, पूरा गुडविल रेज करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड इन ओल्ड। स्टॉक बी वैल्यूड एट, स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक को 10% से कम करना है 1750 से।
फर्नीचर बाय 5%, 1500 से रिड्यूस करना है, लॉसेस है। मशीनरी बाय 11%, ओ सॉरी मैंने गलत जगह पे किया। फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर बाय 5%, 250, एंड मशीनरी बाय 11%, 3300, 3300। आगे all the losses. RBD, reserve for bad and doubtful debts, be maintained at the rate of 5% on debtors. RDD मेंटेन करना है 900 का। अगेन लॉस, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से 200 रुपए राइट ऑफ करने, क्रेडिटर से 200 रुपए कम करने, इट इज अ गेन, क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे, गेन। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, जितना भी उसको पे करना रहेगा उसमें से 5000 टू बी पेड इन कैश, हम उसको 5000 का कैश देंगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सपोज उसको 7000 पे करने, उसमें से 5000 हम उसको पे करेंगे, एंड रिमेनिंग 2000 का हम उसका लोन बोलेंगे बाद में पे करेंगे। प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, एडमिशन जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं। क्वेश्चन 1 एवरीवन, लेट्स ओपन। हाँ, पेज नंबर कितने आ रहे? कोई मुझे बोले पेज नंबर, मैं ढूंढ रहा हूँ मोबाइल में, ये मिल गया मुझे, 172। ओके गुड। In the books of the new firm, in the books of Raja and Rani, और इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखो, सिंपल। बैलेंस शीट, एज ऑन 1 अप्रैल 2019, दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद की बैलेंस शीट। देन कैपिटल अकाउंट्स, तीन पार्टनर्स हैं, देन P&L एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड देन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैश अकाउंट. कैपिटल्स राजा, रानी एंड प्रधान. होने के बाद बोलो. चलो, एडमिशन जैसे सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं. क्रेडिटर्स इनर कॉलम में चेंजेस है. क्रेडिटर्स में 11,200. ओवरड्राफ्ट कोई चेंजेस नहीं, बाहर लिख दो. 9,700. रिजर्व फंड तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड होगा. लायबिलिटी है मतलब वो क्रेडिट है, कैपिटल के क्रेडिट पे बाय रिजर्व फंड. फाइव टू 3:2. 15,000 in that ratio. 10. 15,000 in the 5:3:2. 7,500. Multiply by 3, 4,500. Multiply by 2, 3,000. 10 से डिवाइड करोगे तो 1,500 आएगा. मल्टीप्लाई बाय 5, 7,500. 3, 4,500 एंड पी का आएगा 3,000. उसके बाद कैपिटल्स बाय बैलेंस गॉट डाउन. $42,000. 37,000. 33,200. ठीक है. लाइबिलिटी साइड डन. यस. कैश अकाउंट अलग बनाया टू बैलेंस व्हाट डाउन. अभी फिलहाल हमारे पास 7,600 कैश है. डेटर्स इनर कॉलम में चेंजेस है 18,000. देन स्टॉक 17,500. देन मशीनरी 30,000. लैंड में कोई चेंजेस नहीं, बाहर लिख दो. 70,000. फर्नीचर उसमें चेंजेस है 5,000. ठीक है. अब एक एक एडजस्टमेंट. उन्होंने बोला गुडविल रेज करना है. गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000. गुडविल रेज करना है तो असेट में लिखा जाए गुडविल. 20,000 पे गुडविल रेज करना है, असेट में ऐड हो गया. गुडविल असेट में ऐड होगा तो कैपिटल में भी ऐड होगा. किस पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बाय गुडविल. 5:3:2. 10,000, 6,000 एंड 4,000. हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है, मतलब कैपिटल में ऐड किया है. दिस इंक्रीज इन कैपिटल, दिस डिक्रीज इन कैपिटल. हमने असेट में गुडविल 20,000 पे लेके आ गए और हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड किया. हमने पूरा गुडविल रेज किया है, पूरा का पूरा गुडविल रेज किया है. आगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजा, टू रानी, टू प्रधान. स्टॉक को 10% से रिड्यूस करने को बोला है. लेस राइट ऑफ एट द रेट ऑफ 10%. 1750. स्टॉक को 10% से राइट ऑफ करना है. 17,500 माइनस 1750 वो आएगा कुछ तो 15,750. बराबर. स्टॉक डिक्रीज हो गया, लॉसेस आर डेबिटेड टू स्टॉक 1750. 1750 स्टॉक डेबिट हो. स्टॉक को राइट स्टॉक से माइनस करके P&L एडजस्टमेंट डिवैल्यूएशन को डेबिट किया. उसके बाद उन्हें मशीनरी को 5% से
फर्नीचर को 5% से डिप्रिसिएट करना है, 250, तो ये आएगा 4750, 4750 depreciation to furniture, तो फर्नीचर को नहीं फर्नीचर को 4 नहीं, लॉस 250 का है ना, लॉस 250 का है, रिवैल्यूएशन में 250 आएगा, कितना आएगा 250 आएगा, जितना माइनस हुआ है ना असेट से उतना आएगा 250 माइनस हुआ है, आउटर साइड नहीं आएगा, आउटर कॉलम की वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने बोला है मशीनरी को 11% से माइनस करो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 11%, 3300, $26,700 टू मशीनरी, 3300 लॉसेस है, 3300। आगे आरडीडी 5%, आरडीडी बोलो या आरबीडीडी बोलो एट द रेट ऑफ 5%, 900 रुपीज, 17,100 टू आरडीडी, 900। ठीक है, नेक्स्ट लॉस है, क्रेडिटर्स को 200 राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी डिक्रीजेस अगेन, कितने के बचेंगे क्रेडिटर्स, 10,000, 11,000, क्रेडिटर्स से माइनस हो गया 2000, क्रेडिटर्स से माइनस हो गया 200, इसलिए यहां पे आएगा बाय क्रेडिटर्स, गेन है 200। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्लोज करो, शायद से लॉस ही है, डेबिट इज मोर, ये 2000 रहेगा, 2000, 5,300, 6,200, माइनस 200, 6,000, कितने का रिवैल्यूएशन पे लॉस आ गया, 6,000 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, राजा, रानी एंड प्रधान, 5:3:2, 3,000, 1,800, 1,200, लॉसेस है तो कैपिटल से माइनस होगा तो कैपिटल को डेबिट करो टू रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट, 3,000, 1,800, 1,200, 3,000, 1,800, 1,200। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्लोज, यस। अब देखो ये जो प्रधान है थर्ड पार्टनर वो रिटायर हुआ है, तो उसका कैपिटल कितना है, ध्यान देना, लिखना मत, कुछ लिखना मत, अभी उसका कैपिटल कितना है, क्रेडिट देखो, लिखना मत, आप कुछ मत लिखना, उसका कैपिटल क्रेडिट साइड पे है 200, 3640, 40,200 क्रेडिट कैपिटल है, माइनस 1,200, ठीक है, उसका कैपिटल आई थिंक 39,000 है, उसका कैपिटल कितना है, 39,000 कैपिटल है, पी का कैपिटल 39,000 है, हमें पी को 39, देखो पी के कैपिटल में हमने क्या क्या लिया, इसका कैपिटल प्लस अकाउंटेड प्रॉफिट्स में उसका शेयर प्लस गुडविल में उसका शेयर प्लस, अब माइनस करना होगा, रिवैल्यूएशन लॉस है, लॉस में उसका शेयर हमने माइनस किया, ये सब होने के बाद हमें उसका कैपिटल कितना मिल रहा है, 39,000। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ये जो पार्टनर है इसका नाम क्या, ये जो पार्टनर पी है
उसका कैपिटल 39,000 है, तो फर्म ने उसको क्या पे करना चाहिए, 39,000 पे करना चाहिए। बट हमने उसको बोला है क्वेश्चन में, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, टोटल 39,000 उसका कैपिटल है, उसमें से 5,000 अभी पे करेंगे एंड रिमेनिंग 34,000 हम बाद में पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5,000 उसको पे करेंगे टू कैश, प्रधान कैपिटल टू कैश, हमने उसको रीपेड किया, 5,000 का कैपिटल रीपे किया, तो कैश में आएगा बाय प्रधान कैपिटल। हमने उसको 5,000 रीपे किए, तो अभी कितना बाकी होगा, 34,000। सर ये क्यों नहीं रिपे किया, मे बी हमारे पास अभी कैश नहीं होगी, हम बाद में पे करने वाले होंगे। सो अभी तो हम 39 में से उसको हमने 5,000 पेड किए, 34,000 हम उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे टू प्रधान लोन अकाउंट। ये हमें उसको पे करने लाइबिलिटी में आएगा, प्रधान लोन अकाउंट। ये बाद में रिपे करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इफ एनी। हम उसको बोले कि 39 में से 5,000 ले ले, 34,000 लोन रहने देना, बाद में हम तुझे रिपे करेंगे। प्रधान का कैपिटल क्लोज हो गया, प्रधान का कैपिटल क्लोज हो गया, जो रिटायर होगा उसका कैपिटल जीरो हो जाएगा एट द एंड। 5,000 कैश दे दी, 34,000 का लोन रहने दे, बाद में लोन बोल के रिपे करें, कैपिटल नहीं है वो लोन है। आप बाकी लोगों का कैपिटल बैलेंस करो। चलो 452 59,700 59,500 700 बोल रहा हूँ, 500 56,500। आर आर का देखो 10 ऐड हो जाएगा, 47,500 माइनस 1,800 245। इनके कैपिटल बाकी है टू बैलेंस कैरिड डाउन। राजा का कैपिटल 56,500 है, रानी का कैपिटल 47,500 है, वो लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल्स। राजा एंड रानी, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, सो डोंट वरी। 56,500 राजा का, रानी का 45,700 200 1 कैरिड 12 सो टोटल कैपिटल आएगा 1,02,200। अब टोटल लाइबिलिटी की टोटल कितनी है, 11,000 9,700 34,000 प्लस 1,02,200, कुछ तो 1,56,500 आ रही है, 1,56,900। कैश बैलेंस करो, हमारे पास 7,600 थे, हमने जो पार्टनर गया है उसको 5,000 दिए, तो अभी हमारे पास 2,600 बाकी है बाय बैलेंस 2,600। ओके चेक करो टैली हो रहा है क्या। यस 156,900 हो गया। आगे
सो क्या किया, सब सेम है, नथिंग इज डिफरेंट। खाली एंड में क्या करना है हमें, ये जो पार्टनर जा रहा है उसका कितना कैपिटल है, उसमें से जितना पेड किया पार्शियल अमाउंट पेड किया, बाकी अमाउंट लोन में उसके, ये लोन लाइबिलिटी में रहेगा, ये बाद में रिपे होगा, इस पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसको, लिखा होगा क्वेश्चन में, और इतना इनका कैपिटल बाकी है। सो आगे से अब कौन रहेगा, खाली राजा एंड रानी रहेंगे, प्रधान चला गया, दिस इज द आंसर। एडमिशन जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं। ठीक है, किसी का डाउट अभी तक इस क्वेश्चन में? एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? मेक इट फास्ट। ठीक है, चलो, किसी का डाउट है? बैलेंस शीट ले लो, जल्दी करो। ओके चलो, वी कैन एंड टुडे सेशन। जिनका फाउंडेशन है वी विल मीट एट 5:30। थैंक यू।